آندھیوں کو ذرا خبر کر دو کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا، وقت برا ہے جلدی ہی ٹل جائے گا، فرعونوں کے گھر موسیٰ پل جائے گا۔ بھائی عمران پرتاپ گڑھی کو اس وقت میں ہندوستان کے ایک ذمہ دار شاعر کے طور پر مائک پر آواز دے رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ عمران بھائی سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عمران بھائی جب آپ سنسد میں بولتے ہیں تو اکثر آپ کا مائک بند کر دیا جاتا ہے، یہ مشاعرے کا مائک ہے، یہاں سے سچ بولنا آپ کے لیے کل بھی آسان تھا اور آج بھی آسان ہے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے جناب عمران پرتاپ گڑھی مائک۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ وہ سرزمین ہے جس کی دعاؤں نے مجھے دیش کی پارلیمنٹ تک پہنچایا۔ انہی منچوں پر 2012-13 میں آیا ہوا تھا میں، مجھے یاد ہے، اور آپ نے کنہی معصوم لمحوں میں میرے لیے دعا کی تھی، اور اسی کا صدقہ ہے کہ شاید آج آپ کی آواز بن کے وہاں بول رہا ہوں۔ میں جتین بھائی کے لیے پہلے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جتین بھائی، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، جتین بھائی ادھر آئیے، ایسے کام نہیں چلے گا، آپ ادھر آئیے۔ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں مہاراشٹرا میں کھڑا ہوں، میری خوش نصیبی ہے کہ میں راجیہ سبھا میں مہاراشٹرا کا پرتنیدھتو کرتا ہوں۔ ان دنوں مہاراشٹرا صوبے میں کچھ لوگوں کی جب آوازیں سنتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان پہ بھی بولنا ضروری ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ وہی پرانا عمران بول رہا ہے جس کے لیے آپ، جس کی شاعری کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے، تو مجھے دعائیں دینا کہ حد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، حد سے زیادہ باتیں کرتے رہے، حد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، پد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے صوبے میں بھی کچھ ڈر پھٹیا لوگ، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، تیار رہیے گا، کوئی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے اگلے مصرے پر، کہ حد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، پد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے صوبے میں بھی کچھ ڈر پھٹیا لوگ، قد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، قد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ شاعری ہمیں یہ سلیقہ دیتی ہے کہ ہم اپنی بات کہہ لیں اور وہاں پہنچ بھی جائے جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ جتین بھائی، سب کے من میں یہ بات ہے لیکن شاید کوئی بولتا نہیں اس بات کو۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے، خود کو پہرے دار خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے، نفرت کا بازار بنائے بیٹھا ہے، نفرت کا بازار بنائے بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی ہے اپنے حاکم کو، چوری کی سرکار بنائے بیٹھا ہے، چوری کی سرکار بنائے بیٹھا ہے۔ اور آخری 4 مصرے پھر ایک نظم آپ کو سناتا ہوں کہ آج نہیں جائے گا تو کل جائے گا، آج نہیں جائے گا تو کل جائے گا، آج نہیں جائے گا تو کل جائے گا، کھوٹا سکہ کتنے دن چل جائے گا، کھوٹا سکہ کتنے دن چل جائے گا، وقت برا ہے جلدی ہی ٹل جائے گا،
फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बन करके हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है। पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है, लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी संजीदा सी आखिर में नज्म आपको सुना रहा हूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब
कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत रोया हूं मैं ये मिसरे कहते हुए। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई थी कि एक शख्स है और उसके बच्चे के ऊपर बम गिरा है और उसके हथेली पे उसके बच्चे की पूरी लाश है, बमुश्किल कुछ महीने का बच्चा है। मैंने वो तस्वीर देखा था और ये मिसरे हुए थे बहुत रोते हुए कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना बाप? मुझे पता है यहाँ अदब को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ईमान वाले लोग बैठे हैं। मुझे दुआ देना इन मिसरों पे कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है और लाखों की तादाद में यहाँ मुमरा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुमरा सिर्फ मुमरा नहीं है, मुमरा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुमरा में रहता है। मुमरा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं। मुल्क की खातिर जान लुटाने आए
लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंब्रा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के कट जाते हैं, ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। आप वही सारे लोग हैं, इसमें तमाम में चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं और मैं भी वही आपका इमरान हूं। मैं यहाँ शायर बन के खड़ा हूं, सांसद बन के नहीं खड़ा हूं। जब भी इस तरह के किसी महफिल में आने का मौका मिलता है, सांसदी में गाड़ी में छोड़ के आ जाता हूं और मेरा दिल करता है कि सिर्फ शायर बन करके आपके बीच में बैठूं। और आप यकीन जाने मुंब्रा वालों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं जब सदन में भी बैठता हूं तो मेरी आंख के सामने हाकिम बैठा रहता है, तो एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जब मुझे ये ख्याल ना आता हो कि बाहर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदों का बोझ मेरे कंधे पर है, तो मुझे झुकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, मुझे बोलना है, बेधड़क बोलना है, बिना डरे हुए बोलना है। और मैं बोल रहा हूं, मैं एक नज़्म सुनाता हूं। इन दिनों एक खेल चल रहा है पूरे देश में। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय का नाम कुछ और हो चुका होता है। अपने तमाम शायर दोस्तों से दुआ मांगता हूं, इन दिनों इमारतों से, आपकी निशानियों से, आपकी पहचान से दिक्कत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये खेल चल रहा हो तो हमें भी अलल ऐलान बोलना चाहिए। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मेरी बहुत पसंदीदा नज्म है, आप मुझे दुआ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले यूं ही जाना होता था, इन दिनों आपकी दुआ ने एमपी बना दिया है तो इनविटेशन आता है, 15 अगस्त को हम जाते हैं भाषण सुनने के लिए। और जब मैं उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं ना तो मुझे लगता है कि वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, बोल रही हैं। मैं वो जो दीवारें कह रही हैं मैं उसे नज्म बना के आपकी अदालत में रखता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब तक मैंने बड़ी शराफत से पढ़ा है और आपने शराफत से सुना भी है, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी बदमाश कर दें और थोड़ी देर के लिए आप भी उसी मूड में आ जाए जिसके लिए मुंब्रा का मुशायरा जाना पहचाना जाता है। मुझे एक बार पीछे तक ताली बजा करके हुक्म दें कि मैं ये नज्म आपको सुनाऊं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। लाल किला बोल रहा है और अगला जो मिसरा है उस पे आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। किसी ने कहा है कि इस दौर में जब सच बोलना बड़ा मुश्किल सा हो गया है,
ऐसे दौर में लोगों की दुआओं के भरोसे ही सच बोला जा सकता है। मैं आपकी दुआओं के भरोसे सच बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, पहला बंद पढ़ता हूँ। मैं लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। कमजोरी से सुन रहे हैं आप? कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा, आप वहां पहुंचते जाएंगे। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। एक एक नाम आते जाएंगे, कुछ छूट भी जाएंगे। जो छूटेंगे उन पे भी आपको मजा आएगा, और जो नाम आते जाएंगे उन पे भी आपको मजा आएगा। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है ना, एक शख्स को खिराज अकीदत देनी है आपकी तालियों के शोर के साथ। जो अगला मिसरा आएगा उस पर तैयार रहना। कि राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। तैयार तो अब रहना मुमरा वालों, तालियां तो अब मांगता है इमरान आपसे। कि राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। एक एक हाथ को कसम है कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ के आपसे दुआ लेता हूं, और चाहता हूं मेरा दामन भी और जो ये इन्होंने उठाया है ये वाला दामन भी, दोनों मुझे भर के दुआओं से विदा करेंगे। क्योंकि सुबह से पहुंच करके फिर दिल्ली इलेक्शन में लग जाना है, तो आपकी दुआएं रहेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। इमरान बोल रहा है, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। उधर जो पीछे साथी बैठे हैं जिन्हें लगता है कि उनकी तालियां, उनकी दुआएं, उनके मोहब्बतों का शोर हम तक नहीं पहुंचेगा, तो हम आपको देख रहे हैं। आप दुआ दे के, दाद दे के बताइए, हम आपकी धड़कनें सुन के बताएंगे। और ये जो आगे बैठे हैं इन सबको अगले 2 मिनट के लिए पुकारता हूं मैं। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो
सकता। तैयार अब रहना। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा, पीछे तक तैयार रहना, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। वाह वाह। मैं लाल। एक नज़्म सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। क्या कहना, वाह वाह। हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई, जी भाई, एक मुद्दे पर। एक साथ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे। उन्होंने कहा हो गए सस्पेंड, आ गया मजा। तो हमने उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं, हमें जो करने के लिए यहाँ भेजा गया है वो कर रहे हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वही एक नज्म कही, मैं सुनाता हूँ, फिर एक दो नज्मों की फरमाइश है वो सुना दूंगा कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुमरा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। वाह। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है मिस्रों में, पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले